سنو بس، بولوں گا، بولنا نہیں. موت تجھے حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا جینا جینا. اچھا موت حال بدلنے نہیں دیتی. بے نمازی ایسی مر گیا، بے نمازی مر گیا. اللہ اکبر. اب آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. سنیے، 22 سال کا نوجوان ہے، دلی میں فلم تھیٹر میں. آج کل نوجوان لڑکے ہمارے گاؤں کے بھی میں نے سنا ہے خوب تھیٹروں میں جاتے ہیں، تھیٹر میں فلم دیکھ کے نکل کے باہر کو جا رہا ہے. 22 سال کا نوجوان، 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین کڑیل، اچھا بہترین صحت مند آدمی ہے، جا رہا ہے. اس نے ایسا سوچا نہیں ہے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری سفر ہے، اس کی زندگی کا. اس نے بائک تیز چلائی، اس نے تیزی کے ساتھ بائک چلائی، اس نے منہ میں گٹکا ڈالا ہوا تھا، اس نے کانوں میں گانے سن رکھے تھے. چلتے چلتے اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بائک روک لیتا. دل کا دوڑا اس کو پڑا اسی کے اوپر، اور اسی بائک کے اوپر یہ پہلے گرا، بعد میں اس کی بائک گری. موت نے اس کو کانوں کا گانا بھی نہیں بند کرنے دیا، موت نے اس کو اپنی منہ سے گٹکا بھی نہیں تھوکنے دیا. جب یہ گرا تو اس کا جبڑا توڑ دیا روڈ نے. اس کا وہ چہرہ جو اس کے یہ سیلون میں جا کے، جو بال والے کی دکان پہ جا کے ایک ایک چیز چیک کرتا تھا، پھر اس کے اوپر یہ لگاتا تھا وہ لگاتا تھا، یہ پورا چہرہ لتھڑ گیا کہ اس روڈ کی کنکری نے پورا بگاڑ کے رکھ دیا. اور پھر جب چلا اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچا دیا گیا. پوسٹ مارٹم ہاؤس اب چاہے کوئی بھی چلا جائے، چاہے کوئی بھی، اگر وہ ان نیچرل موت مرا ہے، مرد ہو عورت بچہ جوان کوئی بھی، اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، اس کے سر کو پہلے، پھر یہاں پھاڑتے تھے. اب ایسا نہیں کرتے، ان کے پاس گلنڈر ہے لکڑی والا، یہاں سے ڈالیں گے پورا کر سے پورا کھاڑ کے، اور یہ نکالیں گے اوپر کا حصہ، اور اس کے اوپر وہ جو بھی دیکھنا ہے دیکھیں گے. یہ پھاڑیں گے پورا یہاں سے لے کے یہاں تک پورا پھاڑ کے اس کو بالکل جینب چیر دیں گے. اور اس کے بعد یہ اس میں موٹی موٹی سوئی سے تاگے لگاتے ہیں، سوجے سے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس کو موٹی موٹی سوئی سے اس کے آگے یہ لگائیں گے تاکہ، اور پھر کٹ سے اندر داخل کریں گے، پھر باہر کریں گے. اور میں نے اپنے ایک آدمی کو میں نے غسل دیا تھا، تو میں نے وہ بھی 18 سال کا لڑکا تھا، میں نے اس کا سر جب اٹھایا، اور میں غسل دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کبھی مجھے موقع مل جائے اور میں کبھی کسی کی جنازے میں جاؤں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں غسل کروں. اس سے دل ہلکا ہوتا ہے، اس سے دل سے گناہ کی عادت ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو تو ناز ملائم ہو جاتا ہے. میں نے اس کا سر اٹھایا تو اس کی جو ہڈی تھی سفید میری انگلی میں لگی، اور میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو مردہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے پکڑ، غسل دینے والے تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے قبرستان پہنچانے والوں ذرا ہلکے ہلکے اپنے قدم رکھو، تمہارے قدم کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے قدم کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے قدموں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری والدہ مریم اب میں مردے جلا لیتا ہوں اور تو میری ماں ہے، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو اللہ کے حکم سے تجھے جلاؤں. اندر سے آواز آئی نا 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 میرے بیٹے عیسیٰ، میری جب روح نکلی تھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی جس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کوئی ذرا سا پڑھ لکھ گیا تو اس کے اندر سے یہ خوف موت کا چلا گیا. حالانکہ میرے آقا کریم کے صحابہ کرام روتے تھے موت کو یاد کر کے. آگے برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول قبرستان میں گئے، قبر تیار ہونے میں تھوڑی دیر تھی، حضور کے آنسو ٹپ 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 اتنے گرے کہ وہ جگہ بھیگ گئی. پھر فرمایا سب کو تم کو اسی راستے سے گزرنا ہے، موت کو نہ بھولنا میرے صحابہ. او میرے دوستوں میرے بھائیوں ذرا کان کھولو اور میری طرف دیکھو. یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن اس کو بھی ایسے ہی مر جانا ہے جیسے اس کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، اور تم سب ہم سب یہ سب دنیا سے چلے جائیں گے. موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ پرہیزگار کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ
न पीर को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न विधायक को छोड़े, न मंत्री को छोड़े, न किसी प्रधानमंत्री को छोड़े। मौत ने न किसी को छोड़ा है, न किसी को छोड़ेगी। न किसरा को छोड़ा, न किसी सिकंदर को छोड़ा, न दारा को छोड़ा। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। मेरे भाई, मैंने उससे कहा कि मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम। पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर अपने महबूब के मदीने में मौत अता करना, अपने महबूब के जलवों के तले, अपने महबूब के सदके से बस गुंबद खजरा के आसपास कहीं मौत अता करना। मेरे मालिक, उस मौत से बचाना जिसमें तेरी नाराजगी हो, उस मौत से बचाना जिसमें तू नाराज हो, वो मौत देना जिससे तू राजी हो जाए। आपको मौत में दिलचस्पी नहीं है, ये करीब में स्कूल वाला कब्रिस्तान है, इसमें हर तरह का मुर्दा है। 18 साल का मौजूद हैगा, 20 साल का मुर्दा मौजूद होगा, तुम गौर करोगे तो 25 साल का भी होगा, तुम गौर करोगे तो 30 साल का भी होगा। तुमको दिलचस्पी क्यों नहीं है मौत में? मुझे बताओ जरा, तुम क्यों मौत के बारे में नहीं सोचते? जबकि 25 साल के भी कब्र है। ये हर उम्र का आदमी जो दफन है कब्रिस्तान में, ये पूरी दुनिया के ये ऐलान है कि जब वो न बचे तो तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहंशाहों को मौत आ गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसका जनाजा वहां से उठा, उसको उन्होंने गुस्ल करके काली पन्नी में लपेट के दे दिया। 22 साल की मैयत जब आती है तो दिल पे क्या गुजरती है? जब माँ ने देखा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, माँ के हालात बिगड़े हैं। बहन कहती है मेरा भी, मेरे भाई। अब बाप कहता है मेरी कमर टूट गई, मेरा अकेला बेटा। मगर मियाँ सबके दिल के हाल एक जैसे नहीं होते। चलो चलो, दुकानें बंद हैं, दफन करो, टाइम हो गया। तू किस दुनिया से दिल लगाया है? ये 10 मिनट तेरे बाद तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। तुझे लेकर के जा रहे हैं, हंगामे हुए, और कितने हंगामे होंगे जो तुम नमाजों की तरफ आओगे, और कितने हंगामे होंगे जो तुम अपने रब से डरोगे। लिखो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, जनाजा उसका उठा और शोर मचा, मगर कोई उसके साथ दफन नहीं हुआ, उसे अकेला दफन किया गया। दफन करने के बाद अल्लाह अकबर, इधर देखो, एक बड़े जमींदार की कब्र खुदी। जैसी कब्र खुदी, अंदर बिच्छू थे, उन्होंने क्या किया? कब्र बंद कर दी, दूसरी कब्र खोदी, फिर वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी, वहां भी बिच्छू। उलमा से राब्ता किया, उन्होंने कहा और एक जगह खोज के देखो, तो जब और खोदी तो वो भी बिच्छू। कहने लगे अब ये बिच्छू दुनिया में जहां भी कब्र खोदोगे मिलेंगे। ये बिच्छू नहीं है, कब्र का अजाब है, ये पहले ही शुरू हो गया है इस जमींदार के गुनाहों की दिखाने की वजह से कि ये आज पकड़ा गया है, आज कोई राह फरार नहीं है, इन्हीं बिच्छुओं में इसको डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की हदीस है, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ज़ैद बिन साबित कहते हैं अल्लाह के रसूल कबीले बनी नज्जार की तरफ गए और फिर आपकी ऊँटनी डिसबैलेंस होने लगी। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हमने अर्ज की हुजूर ये बिदअत क्यों रही है ऊँटनी आपकी, और आपकी आंखों में आंसू के फरमाया वो कब्रिस्तान है, कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, मेरी ऊँटनी उसकी आवाज सुन के रोगे बिदक रही है। फरमाते हैं अगर मुझे डर ना होता कि तुम कब्र में अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उसको दफन कर दिया गया, उसको लोग दफन करके लौट गए, कोई नहीं रुकता, न भाई रुके। वो कहता है, हुजूर फरमाते हैं जब दफन होता है तो कहता है मेरे दोस्तों थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, थोड़ी देर, मगर तुमने देखा नहीं तुम फातिहा पढ़ने के लिए भी कुछ लोग नहीं रुकते। बोलो बात सही है नहीं? आज कब्रिस्तान में मजाक करते देखा है मैंने लोगों को, आपस में दुनियादारी की बातें करते देखा है। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत का नबी कब्रिस्तान में आके रोए, उस उम्मत की बातें ठिकते लगाना बड़ी बेहूदगी है, बर्बादी का सबब है। इस वजह से थोड़ी जाते हैं लोग आजकल माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कि लोग अल्लाह के लिए या उसके सवाब के लिए, नहीं ये मेरी दफन में गया था, मैं भी गया हूँ, ये आजकल चलन बन गया है। अरे मौत को तो दुनियादारी में न कहो, मौत के साथ तो दुनियादारी न करो, तुम जिसका सुनो चले जाओ। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उसको दफन कर दिया गया और कोई नहीं रुका। वो कहता है मेरे दोस्तों रुको, कोई नहीं रुका। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सवाल मेरे नौजवानों से है कि वो फिल्म देख के मरा था, उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी तस्वीर देख के मरा था। अल्लाह अल्लाह। बताओ, इधर देखो, इधर देखो, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ
आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए, जिसके मेरे नौजवानों को यहूदियों ने इजराइल में बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। इंस्टाग्राम इजराइल का, फेसबुक इजराइल का। और आपको बताऊं, ऐसी कोई वीडियो आपके मोबाइल में आज तक चली नहीं जो इल्म में, अल्लाह के इल्म में ना हो, जिसे अल्लाह ने देखा ना हो। कोई छोटी से छोटी वीडियो कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां तुम चल रहे थे, तुमने किसी की बेटी को बुरी नजर से देखा था तो उसने देखा नहीं था। आंखों से देखना ये फिजिकल तो नहीं, मगर ये दिमाग, आंखों का जिना है, आंखों का जिना है ये मेरे भाई। तेरी आंखें नहीं नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत है। आंखें क्यों बनाई गई? अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, ऐसे मरना चाहते हो कि तुम मरो तो तुम्हें लोग ये याद दिलाएं, ये इधर देखो मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, तुम मोबाइल के लिए पैदा किए गए थे। ये आजकल नौजवान बर्बाद नहीं हो रहे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस मोबाइल में लगे हुए। जब तक डेटा के खत्म होए यार, 10 मिनट जाके उससे पूछ जो मरने जा रहा है, जिसका पूरा जिस्म फालिज में हो गया, यानी मरने से पहले पूरा जिस्म काम नहीं करता, सिर्फ ये हिस्सा इसमें रूह रह जाती है। और वो देखता है फरिश्तों को तो कहता है मुझे एक बार नमाज पढ़ने दे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं नहीं नहीं। आंखें बंद होती हैं तब खुलती तब है जब बंद होने वाली होती है। इस वजह से दुनिया में आपको आए थे कि अब तुम मरोगे तो ऐसे मरोगे। अच्छा, मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपना प्राइवेट पार्ट, अपनी शर्मगाह नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? जायज तो है। फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। अच्छा ये बताओ जन्नत शरीफ वालों, सब हुजूर से प्यार करते हो, अगर सरकार यहाँ आ जाए तो तुम क्या देख सकते हो, नजर उठा सकते हो? नहीं नहीं नहीं। आला हजरत फरमाते मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। नौजवान, अगर तूने अपनी आंखों को मजबूत न किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये तेरी आदत। मेरे दोस्त, एक आदमी है हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के पास एक हाफिज कुरान आया और उनका मुरीद था सबसे मजबूत, टनाटन, इतना मजबूत हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था। और जाके क्या लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, कांपने लगा। और क्या हुआ? ओ हुजूर बर्बाद हो गया। और बता तो क्या हुआ? ओ हुजूर बर्बाद हो गया। और बता तो। कहने लगा मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहते शर्म नहीं आती, एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी मुझे पलट के देखता है। कहा हुजूर उसके अल्फाज सीने के ऊपर असर कर गए और फिर तब से लेके अब तक मैं पूरा कुरान भूल गया, एक भी आयत मुझे याद नहीं। अभी मेरा कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। अरे पढ़े लिखे लोग फेसबुक चलाते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ पाते, कुरान नहीं पढ़ पाते। कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह नाराज हो गया है, हमारे घरों में हमारी कोई इज्जत नहीं रही, इस मुल्क में आज हम हर जगह जलील हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम वो मुसलमान नहीं रहे जो थे, वो मुसलमान नहीं रहे जो मुसलमान कल थे। वो कोई और पे हक न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, तो शेरों के भी मैदान से वो ये से वाले मुसलमान नहीं थे। वो ये नहीं थे कि मियां अब इमाम हसन बसरी इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश आया तो कल लोगों तौबा करो, मैंने जितने लोगों का ईमान छिनते देखा है, यानी बर्बादी, वो वही है जिनकी आंखें खराब थी, जिन्होंने दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखा था, जिन्होंने दूसरों की बहनों को बुरी नजर से देखा था। एक सवाल आपसे ये है, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी तुमने रूह निकलते देखी कुछ लोगों की? मैंने सुना है, आपने भी सुना, हमने बचपन से सुना है, फलां का दम नहीं निकल रहा है। सुना है दम नहीं, क्यों नहीं निकल रहा है? रूह नहीं निकल रही है। लोग कह रहे कलमा पढ़ो से कुछ याद ही नहीं है। ऐसी मौत न मरो कि तुम मरते वक्त तुम्हें लोग कलमा भी याद दिलाएं तो तुम उल्टी सीधी बात करो उससे। क्या बात ऐसी कहते हैं लोग, और इस वजह से कहते हैं ज्यादा मत कहो कलमा, ज्यादा कलमे को ना कहो। उलमा कहते हैं ज्यादा ना कहो, क्यों? क्योंकि क्या पता उल्टी सीधी बात कह रहे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कि कलमा तुम्हें लोग, ऐसा कलमा ऐसा ना मरो कि तुम्हें लोग कलमा याद दिलाएं, नहीं 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 नहीं, बल्कि ऐसे मरो कि तुम दुनिया से जा रहे हो तो दुनिया वालों को कलमा याद दिला के चले जाओ। इतना कलमा पढ़ो। हमारे ताया जिनका ये मज़ार है, हकीम अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे जबान से ही तो काम करते हो, मगर अब हाथ से ही तो काम करते हो, मगर जबान से कलमा पढ़ा करो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम खामोश हो जाओ तो तुम्हारा दिल कलमा पढ़ने लगे। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप तो सब ये बड़े बड़े लोग जानते हैं, नए लोगों को नहीं पता होगा, और बड़े नेक इंसान थे मेरे ताया, अल्लाह उन्हें बख्शे। ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने इतना कुरान पढ़ता हुआ आज तक किसी आदमी को नहीं देखा जितना मैंने उन्हें कुरान पढ़ता हुआ। 6-7 सिपारे रोज
پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے میرے لال آج ان کی یہ مزار کریم میں ہے تو یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے میرے بیٹے جس خاندان سے قرآن نکلے وہ قرآن گھر برباد ہو جائے. بے شک اللہ. ہاں قاری محمد علی فیضی صاحب آنا ہے، تھوڑی خاموشی کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے. جی جی نعرہ تکبیر. اچھا یہ آپ ہی رہے آپ کو خوش غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری محمد علی صاحب کو فیضی براؤ شریف. اے بھائی اے ادھر کون بھی ادھر دیکھو بیٹھو.